Hello learners, this is your trainer Aishwarya Seth and I welcome you all to this India's first social and revolutionary educational channel of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where we are providing you complete and full-fledged coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, Master Cadre, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and much more to the students all over India 100% free of cost. Our mission is to impart absolutely free of cost quality education to those students and aspirants who can't afford these exclusive courses, or for those underprivileged students who won't be able to avail these expensive courses due to their financial constraints. So even this channel belongs to all the students throughout India who seriously wants to build their career and desperate for achieving their educational goals. So guys, immediately subscribe this channel so that we can help you to make your dreams come true. As this is a purely social educational channel, we are providing you complete coachings of all competitive exams absolutely free of cost. I started this channel last month, that is on 1st April 2020, and complete coachings of CTET, PTET, KVS, NVS and UGC NET are going on this same channel in a chronological and systematic manner, so that not even a single topic can be left. I also want to welcome the new subscribers who joined us recently and suggest them to watch each and every video step by step, because we are uploading one video for UGC NET and one video for CTET, PTET, NVS, KVS daily in a sequential manner. So the topic of ICT is going on in UGC Paper 1 series, in which is the 8th unit of UGC Paper 1, and in this series subtopic of journal abbreviations and terminology of ICT is going on, in which yesterday I taught you the first part of this topic, and today I will cover the second part of the topic of journal abbreviations and terminologies of ICT in a detailed manner. So let's start with the presentation. सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप जो फुल फॉर्म देख रहे हैं दैट इज़ JPEG, दैट इज़ JPEG. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है जी. जो भी कल की वीडियो में मैंने आपसे जो है एक्रोनिम्स और फुल फॉर्म्स, एब्रीवेशंस, टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 लेके आई हूँ सेम सीरीज़ का. तो दोनों ही जो पिछले 10 साल के 10 ईयर पेपर्स में टर्म्स आई हुई हैं, टर्मिनोलॉजीज आई हुई हैं, फुल फॉर्म्स आई हुई हैं, वो सारी हमने कंपाइल करके ये 2 वीडियोस बनाई हैं. ठीक है जी. तो साथ में क्या है, जो एडवांस आजकल भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनको भी हमने साथ में कवर किया है. तो बोथ साइड्स ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आप सबके लिए, बिकॉज एक क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म पे या टर्मिनोलॉजी पे ज़रूर आ जाता है ICT में, जिसमें 5-6 क्वेश्चंस टोटल जो है UGC पेपर 1 में अपेयर होते हैं. ठीक है जी. सो ये ध्यान से आप सुनिए, इसको लर्न करें. ठीक है जी. सो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG इज अ पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट. इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय डिजिटल कैमराज टू स्टोर फोटोज. ठीक है जी. JPEG फॉर्मेट आपने ज़रूर सुना होगा, और बहुत सारे आजकल हम ये यूज़ भी करते हैं. फोटोग्राफर्स हैं और जो भी सिनेमेटोग्राफी में होते हैं या इस लाइन में होते हैं और जिन्होंने ग्राफिक्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं, वो JPEG फाइल्स जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं. और जो भी इस तरह की फाइल्स सेव होती हैं उसके पीछे JPEG फॉर्मेट भी एक्सटेंशन एज अ इसको लगता है. ठीक है जी. सो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी एक क्वेश्चन पेपर में इसकी फुल फॉर्म आई हुई थी. तो जैसे कि मैंने कहा कि जो आज की वीडियो है और जो कल की वीडियो थी पार्ट 1, ठीक है जी, इसमें मैंने सारे पिछले 10 ईयर पेपर्स को उठाकर सारी जितनी भी ये फुल फॉर्म्स आई हुई हैं वो सारी मैंने आपको जो है वो करवानी है. ठीक है जी. सो ध्यान से सुनिए. BMP स्टैंड्स फॉर बिट मैप. ठीक है जी. कई स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, पेपर में B फॉर कुछ और, B फॉर भी कुछ होगा, M फॉर भी कुछ होगा और P फॉर भी कुछ होगा. तो ये 4 तरह की ऑप्शंस होती हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सिंपल से इसकी फुल फॉर्म है BMP की बिट मैप. द BMP फॉर्मेट इज़ अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द सेविंग इमेज फाइल्स. जो भी आपकी पिक्टोरियल फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल्स होती हैं, ठीक है जी, उनको सेव करने के लिए जो पीछे सेविंग नेम के पीछे जो फाइल एक्सटेंशन लगती है वो इसी की BMP की बिट मैप फॉर्मेट की ही लगाई जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं GIF फॉर्मेट, दैट इज ग्राफिकल that is graphics interchange format. Graphics interchange format is a bitmap image
फॉर्मेट इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एनिमेशंस। अब ये ज़्यादा एडवांस लेवल पे चला गया, ठीक है जी। है तो ये बिटमैप का ही जो है एक सब पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, जो और भी एडवांस्ड एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उस तरह की जो फाइल्स होती हैं जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मेंटेन करते हैं, और जो प्रोजेक्ट भी हम हैंडल करते हैं एज ए स्टूडेंट, जो हम एनिमेशन सीखते हैं, तो उसको जो ये प्रोजेक्ट जो हम सेव करते हैं, फाइल सेव करते हैं, उसके पीछे एक्सटेंशंस कौन सी लगती हैं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF फॉर्मेट्स की एनिमेशंस और फाइल्स मेंटेन की जाती हैं, ठीक है जी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है GIF की, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या है JAD, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है जी। जावा, इसका फुल फॉर्म क्या है, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। So it is a methodology that involves the client or end user in the design and development of the application through a succession of collaborative workshops called JAD sessions, ठीक है जी। क्या डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है जी, क्लाइंट के लिए, यूज़र के लिए, ठीक है। कौन सी बेसिकली इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है जी। कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स करके क्लाइंट्स को साथ में बिठा के, जो डेवलपर्स होते हैं वो जब जो है इस तरह का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है जी, उस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये सारी फुल फॉर्म्स जो हैं पिछले 10 ईयर्स में से मैं बार बार कह रही उठाई हैं। इनकी बेसिकली आपने इतने डेप्थ में कंसेप्ट में नहीं जाना, आपको इतना इसका मीनिंग पता नहीं होना चाहिए जितना कि इसकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी या थोड़ी सी इसकी मीनिंग भी थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं इसमें करना। आपने सिर्फ इन एक्रोनिम्स की और इन एब्रीवेशंस की थोड़ा सा बेसिक में आपको हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है, बट क्या है, 100% इनकी जो है आपको फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, ठीक है जी। ये फुल फॉर्म्स आई हुई हैं पेपर में सारी। JAR, जावा आर्चीव, अ जार इज अ पैकेज, Java Archive is a package, file format typically used to aggregate many Java class files and associated metadata and resources into one file for distribution. Text है, images है, pictures हैं, ये जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो ये किस स्क्रिप्ट में डिज़ाइन किए जाते हैं, जावा क्लास के स्क्रिप्ट्स में, और इस तरह की फाइल्स मेंटेन की जाती हैं जिसमें बहुत सारा मेटा डाटा जो है, रिसोर्सेज है, कंपाइल करके इसको डिज़ाइन किया जाता है। जावा आर्चीव को, आर्चीव होता है जिसमें डाटा स्टोरेज होती है बहुत सारी, ठीक है जी। तो ये जो आर्चीव्स बनते हैं, जावा आर्चीव बनाए जाते हैं, तो इसकी एक्रोनिम क्या है, JAR, जिसकी फुल फॉर्म है जावा आर्चीव, ठीक है जी। सो ये क्या है, इट्स अ पैकेज ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं MIDI, MIDI। MIDI means the full form is Musical Instrument Digital Interface, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये भी जो है बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ था। इसकी फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है क्या, इट इज़ अ प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक ऑन डिजिटल synthesizers which is supported by many makes of personal computer sound cards। का मतलब, कहने का मतलब है ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। एक पैटर्न है जो डिज़ाइन किया गया है रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक के को प्लेबैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे जो है म्यूज़िक लगाते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको प्लेबैक करते हैं, रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स को सेव करते हैं, ये सारा इंटरफेस कौन सा होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जिसकी जो है एक्रोनिम क्या है, MIDI, ठीक है जी। नेक्स्ट MP2, आपने सुना होगा MP2 फाइल है, MP3 फाइल है। ये क्या है, ये बेसिकली ऑडियो फाइल्स होती हैं। MPEG का MPEG में जो है ये मेंटेन करी जाती है। MPEG का मतलब यहाँ पे क्या है, MPEG की फुल फॉर्म होती है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MP2 की फुल फॉर्म क्या है, MPEG ऑडियो लेयर 2, और MPEG ऑडियो लेयर 2 में MPEG की भी फुल फॉर्म क्या है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है इसने ऑडियो लेयर की जो फाइल्स को सेव करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस और फॉर्मेट्स क्रिएट किए थे इस ग्रुप ने। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, MP2 फॉर्मेट, ठीक है जी। इट इज़ एन फाइल फॉर्मेट क्रिएटेड बाय द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप एज अ मल्टीमीडिया कंटेनर container format designed to store
ऑडियो विजुअल डाटा। ठीक है जी, बेसिकली क्या है ऑडियो विजुअल, बेसिकली 90% तो ऑडियो के लिए है, थोड़ा सा उसमें विजुअल बेसिक्स भी आते हैं तो वो भी उसके साथ जो है कंपाइल होकर स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है जी, सो MP2 और नेक्स्ट क्या है MP3, उसका एडवांस वर्जन है। ये भी किसने किया था, MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप ने। ये MP2 पहले बनाया था, उसके बाद MP3 डेवलप किया। ये भी किसके लिए, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट्स की डिज़ाइनिंग के लिए है, उनकी स्टोरिंग के लिए, सेविंग के लिए। ठीक है जी, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है PNG। PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क और न्यू ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ऑब्लिक न्यू ग्राफिक्स होता क्या है, इट वॉज क्रिएटेड एज एन ओपन फॉर्मेट टू रिप्लेस GIF। GIF ग्राफिकल, जो आपको अभी GIF की फुल फॉर्म करवाई थी मैंने, ये देखिए GIF को रिप्लेस करा है इसने ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसका भी जो है ये एडवांस्ड वर्जन है, उसको रिप्लेस करके नया फॉर्मेट आया था PNG। बिकॉज द पेटेंट फॉर GIF वॉज ओन्ड बाय वन कंपनी एंड नो बडी एल्स वॉन्टेड टू पे लाइसेंसिंग फीस। इट ऑल्सो अलाउज फॉर अ फुल रेंज ऑफ कलर एंड बेटर कंप्रेशंस। जो GIF है उसमें भी ग्राफिक्स जो है वो सेव किए जाते थे, स्टोर किए जाते थे, उनको बनाया जाता था, क्रिएट किया जाता था। ठीक है जी, मॉडिफाइड किया जाता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है नया फॉर्मेट कौन सा आया जिसने GIF को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, क्या होता है PNG। ये भी क्या है, एक फॉर्मेट है, ओपन फॉर्मेट है, जिसमें जो है जो ग्राफिक्स है या जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमेशंस हैं, उनको जो है स्टोर, रिट्रीव, मॉडिफाइड, अल्टर और उसको जो है वो प्रोसेस किया जाता है और सेव किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है RM। इट मीन्स रियल मीडिया। RM इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर द कंटेनर फाइल यूज्ड बाय रियल नेटवर्क्स, रियल प्लेयर, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर फॉर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स और लिंक्स टू दीज फाइल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। जब हम लाइव स्ट्रीमिंग्स में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिसमें ऑडियो, मीडिया, रियल प्लेयर, रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है, उसको सेव करने के लिए जो फाइल एक्सटेंशन बनाई गई है वो क्या है, रियल मीडिया फाइल एक्सटेंशन। ठीक है जी, जितने भी नेटवर्क पे रियल मीडिया के जो सॉफ्टवेयर या ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं, ये उसको जो है रिट्रीव और स्ट्रीमलाइन करने में जो है मदद करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जिप। ये आपने ज़रूर सुना होगा, जिप कोड्स होते हैं। ठीक है जी, जिप फाइल्स भी होती हैं, जिप कोड्स भी होते हैं। ठीक है जी, तो जिप क्या है, अ जिप कोड इज़ अ पोस्टल कोड यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस इन अ सिस्टम। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1963। बेसिकली ये कब ओरिजिनेट हुआ था, 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स में। इट वॉज चोजन टू suggest that the mail travels more efficiently and quickly when senders use the code in the postal address। ये जो एक तरह का कोड है जो पोस्टल या कोड कह सकते हैं, पोस्टल कोड कह सकते हैं, जो हम डाटा अभी जैसे मेल्स वगैरह हैं, ईमेल है, ठीक है जी, और हम शेयर करते हैं डाटा, इधर उधर कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, तो उसको ज़्यादा जल्दी जो है क्विकर फॉर्म में वो सेंड कर देता है और उसको जो है प्रॉपरली सेम जो है एंड पे भेजता है जहाँ पे हमने सोचा होता कि उस एंड पे जाएगा, उस कंप्यूटर पे जाएगा या उस प्रॉपर जो है रिसिपिएंट को मिलेगा। तो ये जो मेलिंग का पार्ट है या कम्युनिकेटिंग का पार्ट है या लेटर्स वगैरह एफिशिएंटली और मोर इफ़ेक्टिवली उस एड्रेस पे पहुंचाने का काम जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कौन करता है, जिप कोड, दैट इज़ अ पोस्टल कोड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है VOB, वीडियो ऑब्जेक्ट इज़ अ कंटेनर फॉर्मेट इन DVD ऑडियो, DVD वीडियो मीडिया। वॉब क्या है, वीडियो ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये फॉर्मेट है किस में होता है, DVD वीडियो मीडिया में होता है। वॉब कैन कंटेन डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियोज, सब टाइटल्स, DVD मेन्यूज एंड नेविगेशंस कंटेंट्स मल्टीप्लेक्स टुगेदर इन अ स्ट्रीम फॉर्म। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए और प्लस जो है इसकी फुल फॉर्म जो है आपको आनी, मतलब जो भी मैं आपको भी सिखा रही हूँ आज की वीडियो में सबकी फुल फॉर्म्स तो पक्का ही आनी चाहिए आपको। WAV क्या है, वेव फॉर्म PCM ऑडियो। वेव फॉर्म PCM ऑडियो इज अ फाइल एक्सटेंशन यूज विद द वीडियो मीडिया विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर को जब हम प्ले करते हैं उसके साथ जो है हम प्रोसेसिंग में या मीडिया प्लेयर को जिस तरह से भी यूज़ करते हैं उसको, उसके साथ फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है, WAV की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर के साथ कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है।
.wav.wvav ऐसे क्वेश्चन उसमें जो है वो ऑप्शंस आए हुए थे, तो कौन सी थी? .wav. सो WMA इज बोथ एन ऑडियो फॉर्मेट एंड ऑडियो कोडेक. ठीक है जी. WAV क्या है? वेव फॉर्म PCM ऑडियो. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये क्या है? ये दो तरह का कॉम्बिनेशन है, ऑडियो फॉर्मेट का और ऑडियो का कोडेक. कोडेक मतलब कोड्स जो हम डिसाइड करते हैं, कोड्स जो देते हैं. ये हम कोड्स नहीं बनाते, ये प्रोग्रामर्स जो बड़े बड़े मीडिया प्लेयर्स बनाते हैं वही उनको कोड डेवलप करते हैं. तो आप बस ये ध्यान से देखिए कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर के साथ कौन सा WAV का फाइल एक्सटेंशन यूज़ होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है? ASR. इसकी फुल फॉर्म आई हुई थी पेपर में. ASR क्या होता है? 3 तरह की इसकी फुल फॉर्म्स है अलग अलग तरीके से. ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव भी इसकी फुल फॉर्म है. ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन भी इसकी फुल फॉर्म है. ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी भी इसकी फुल फॉर्म है. लेकिन ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग जो हैं एरियाज़ में यूज़ होते हैं. तो इसकी 3 तरह के अलग अलग डोमेन्स की 3 तरह की अलग अलग फुल फॉर्म्स हैं. ये भी पेपर में आए हुए थे. तो मैंने सारे पेपर्स पिछले 10 साल के पेपर्स उठा के आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करवा रही हैं जो बार बार पेपर में आई हुई हैं. अदरवाइज टर्मिनोलॉजी और एब्रीवेशंस तो कंप्यूटर्स में इतनी हैं, ICT में इतनी हैं कि मतलब हज़ारों में, थाउजेंड्स में है. ठीक है. तो वो सारा कुछ याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा. तो जो बार बार पेपर में पिछले 10 ईयर्स में आई हुई हैं वो सारी कंपाइल करके मैंने आपको सिखाई हैं आज. ठीक है जी. आज और कल की वीडियो में भी आधी कवर करी हुई हैं. जो जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो कल की वीडियो भी देख लीजिए. ठीक है जी. सो माइकर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया. माइकर की फुल फॉर्म आई हुई है. MICR फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या हम इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. दोनों ही इसकी फुल फॉर्म्स है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली चेक्स. आपने चेक्स के नीचे देखा होगा माइकर कोड लिखा होता है. ठीक है जी. तो ये उसी तरह से मतलब वो माइकर कोड जो है वो लिखा होता है इसी इंक के को यूज़ करके. जो MICR की इंक है, करेक्टर रीडर है, उसको यूज़ करके लिखा होता है. उसमें इंस्क्राइब्ड की होती है. स्पेशल इंक विच इज़ सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स इज यूज्ड इन द प्रिंटिंग ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है जी. तो ये यूनिक तरह का जो है वो इंक कैरेक्टर रीडर है और ये चेक्स के नीचे लिखा होता है और ऑफिशियल और बहुत ही ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के नीचे भी माइकर कोड जो है वो होता है. नेक्स्ट क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंटेड और रिटन टेक्स्ट कैरेक्टर्स बाय द कंप्यूटर. आपने सुना होगा OCR. OMR भी एक होता है. OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर. ठीक है जी. उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर. और ये क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है? P2P. P2P का मतलब होता है पेयर टू पेयर. पेयर टू पेयर नेटवर्क इज क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर पीसेज आर कनेक्टेड एंड शेयर रिसोर्सेज विदाउट गोइंग थ्रू अ सेपरेट सर्वर कंप्यूटर. सर्वर की ज़रूरत नहीं है. जब 2 से ज़्यादा पीसीज, 2 या 2 से ज़्यादा पीसीज ने, पर्सनल कंप्यूटर्स ने आपस में कनेक्शन मेंटेन किया होता है, नेटवर्क बनाया होता है. ठीक है जी. रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. तो उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? P2P नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पेयर टू पेयर नेटवर्क. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है? PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क. क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क. ये फुल फॉर्म आई हुई है पिछले 2 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में. ठीक है जी. 2 साल पहले PAN आया हुआ था, पर्सनल एरिया नेटवर्क. जब मैंने आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज, वो वीडियो अगर आपने देखी होगी जिसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज सिखाई थी आपको, डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स सिखाए थे, उसमें मैन, वैन, पैन, सैन, VPN सारा कुछ सिखाया मैंने आपको. ठीक है जी. तो ये वहीं से मैंने मतलब एक फिर दोबारा से फिर मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे मैंने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है. ठीक है जी. तो PAN क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसकी फुल फॉर्म आई हुई थी कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग द डिवाइसेस सेंटर्ड ऑन अ इंडिविजुअल्स पर्सनल वर्क स्पेस. एक ही इंडिविजुअल है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपना दूसरा कोई गैजेट, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉच है और अदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा है, टैबलेट है, ये सारे मेरे अपने रिसोर्सेज आपस में कनेक्ट किए हुए हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ दी पर्सनल एरिया नेटवर्क. मीन्स मेरा नेटवर्क पर्सनलाइज नेटवर्क है जो मैंने अपने डिफरेंट जो है वर्क स्पेस में अपने डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू बनाया हुआ है. ठीक है जी. मेंटेन किया हुआ. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है? PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैकेनिकली सपोर्ट्स एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. ठीक है. डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए और मैकेनिकली सपोर्ट करने के लिए क्या होता है? एक बोर्ड यूज होता है.
छोटी सी एक चिप होती है बोर्ड के बोर्ड मतलब सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये ट्रिपल पी जैसे एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है मेल ट्रांसफ़र के लिए, ये भी एक क्या है, ट्रिपल पी प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल यूज टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है जी, दो नोड यहाँ पे क्या है, दो कंप्यूटर्स में कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी, एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और उसका एक्रोनिम क्या है, ट्रिपल पी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, XSL। XSL भी एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। extensible style sheet language. In computing the term extensible style sheet language, XSL is used to refer to a family of languages used to transform and render XML documents. ठीक है जी, XSL हो गया, XML हो गया, HTML हो गया, XHTML हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस की एक फैमिली है जो कि वेब सर्वर्स को, वेब पोर्टल्स को, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, XSL। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्स से शुरू नहीं होती, ई से शुरू होती है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, अब ये देखिए मैंने आपको बोला था कि ये सारी फैमिली है इन लैंग्वेजेस की। XHTML। XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ XML मार्कअप लैंग्वेजेस, जो वेब पोर्टल्स को, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होती हैं। WDM की फुल फॉर्म वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये सारी ही आईसीटी की टर्मिनोलॉजीज और एब्रीवेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू आईसीटी। ठीक है जी। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये ऐसी इतनी सारी कभी आपने कई बार सुनी भी नहीं होती हमने, और पेपर में, क्योंकि पेपर में इजी टर्म्स नहीं आती, पेपर में ऐसी ही टर्म्स आती जो कभी हमने सुनी भी नहीं होती। ठीक है जी। तो ये पिछले लास्ट 10 ईयर्स का जो मैंने पूरा कंपाइल करके आपको बता रही हूँ। तो वेव डिवीजन मल्टीकम्प्लेक्सिंग इज अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स ऑन लेजर बीम्स एट वेरियस इंफ्रारेड वेवलेंथ्स फॉर ट्रांसमिशन अलॉन्ग फाइबर ऑप्टिक मीडिया। ठीक है जी। तो जब हम क्या करते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को लेज़र बीम के साथ कंबाइंड करते हैं, तो इंफ्रारेड वेवलेंथ्स जो ट्रांसमिशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, WAV, वेव फॉर्म PCM ऑडियो। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेव फॉर्म PCM ऑडियो। इट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM ऑडियो फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग एन ऑडियो बिट स्ट्रीम ऑन PCs। पर्सनल कंप्यूटर्स पे जो ऑडियो बिट स्ट्रीम्स को जो हमने सेव करना होता है, स्पेशली ये एक फाइल फॉर्मेट है। ठीक है जी, स्टैंडर्डाइज्ड फाइल फॉर्मेट है फॉर स्टोरिंग एन ऑडियो बिट स्ट्रीम ऑन द PCs। एंड ये क्या है, किसके द्वारा जो है निर्मित हुआ है, किसने बनाया है, इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM, ये दोनों कंपनीज ने मिलके इस फॉर्मेट को बनाया है, ऑडियो फाइल्स की बिट स्ट्रीम को PCs के ऊपर जो है वो स्टोर करने के लिए, वेव फॉर्म PCM ऑडियो। नेक्स्ट क्या, ये देखिए सारे हमने क्या कर लिए, डिफरेंट जो है हमने एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजीज कर ली। और अदर इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो अब पेपर्स में और भी आई हुई हैं, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, अदर इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ये भी पेपर्स में आई हुई हैं। ठीक है जी। ऑरेकल पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म, तो ऑरेकल की फुल फॉर्म क्या होती है, ओक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन। ये ऑरेकल एक लैंग्वेज है, ऑरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यही पेपर में, ये सारी की सारी जितनी भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी गई थी पिछले 10 ईयर्स पेपर्स में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ सिर्फ फुल फॉर्म्स आपको जो है बता दूं, चाहे आप नोट्स वीडियो सुनते सुनते आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ऑरेकल की फुल फॉर्म क्या है, ओक, OAK, ओक रिज, RIDGE, ओक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, RDBMS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, PERL, पर्ल की फुल फॉर्म क्या है, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ये भी एक लैंग्वेज है पर्ल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ठीक है जी। PHP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर।
PHP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है जी। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS इसकी फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। VBS की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। VBS की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद है AIFF की फुल फॉर्म है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? CASE केस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? MPEG। ये आपने पूरी वीडियो देखी है, उसमें ये आया हुआ है MPEG। ठीक है जी। MPEG की फुल फॉर्म मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। PDF। अब हमने कई बार हम कहते हैं ना PDF फाइल है, PDF फाइल भेजो मुझे, मैं आपको PDF फाइल भेज रहा हूँ। तो ये PDF फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो इस PDF हम बहुत बार बोलते हैं PDF फाइल है, PDF फाइल है, बट PDF का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पेपर में पूछा गया था। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है जी। तो ये सारे अभी मैंने ये भी आपको जितनी भी बताई, ओरेकल, RDBMS, पर्ल, PHP, CSS, VBS, AIFF, केस, MPEG, PDF, इनकी भी फुल फॉर्म्स जो हैं वो पेपर में एज इट इज़ ही पूछी गई थी। 4 ऑप्शन साथ में दिए जाते हैं और जिसको नहीं आती है वो गलत भी टिक कर आता है, जिसको प्रॉपर आता है वो सही टिक करके आता है। तो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं इसमें। ठीक है, सबकी फुल फॉर्म्स आपको मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइल एक्सटेंशंस। अब कल की वीडियो में जो पार्ट 1 था, ठीक है, इसी सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको लास्ट में 5 तरह की फाइल एक्सटेंशंस कल की वीडियो में मैंने आपको बताई थी। ऑडियो फाइल एक्सटेंशंस बताई थी, इमेज फाइल एक्सटेंशंस बताई थी, वीडियो फाइल एक्सटेंशंस, डिस्क एंड मीडिया फाइल एक्सटेंशंस, प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशंस। 5 तरह की मैंने कल बताई थी। ऑडियो फाइल एक्सटेंशंस, इमेज फाइल एक्सटेंशंस, वीडियो फाइल एक्सटेंशंस, डिस्क एंड मीडिया फाइल एक्सटेंशंस, प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशंस। और आज की जो अभी पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रही हूँ, 5 तरह की मैंने और फाइल फॉर्मेट्स और फाइल एक्सटेंशंस जो आपके लिए लेके आई हूँ। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। अगर ये आपसे एज इट इज़ याद होती हैं तो कर लीजिएगा, नहीं याद होती तो फिर इसको चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ लर्न करना, क्योंकि कंप्यूटर बहुत वास्ट है। 2 नंबर के लिए हमने इतना ज़्यादा जो है वो जद्दोजहद नहीं करनी है। आपकी IQ लेवल पे या आपके मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सारा कुछ लर्न कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊं। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ मैंने छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक का कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम। यही हमारी कमिटमेंट है पूरे इंडिया से, कि कोई भी सिलेबस है, कुछ भी करा रहे हैं, कोई भी आपको कोर्स करा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमने। ठीक है जी। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। ठीक है जी। वर्ड प्रोसेसर एंड टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स फाइल एक्सटेंशंस। जो वर्ड प्रोसेसर्स की फाइल एक्सटेंशंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। .docx ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल फॉर्मेट्स हैं। .docx, .odt ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है जी। .pdf ये PDF फाइल होती है ना, PDF, तो ये PDF फाइल के लिए यूज़ हो जाती है .pdf। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। .tex अ लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। .txt प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए। .wks एंड .wps माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स फाइल के लिए। ये सारी क्या हैं? ये वर्ड प्रोसेसर की जितनी भी फाइल्स हम मेंटेन करते हैं, अलग अलग टाइप्स की, उन अलग अलग टाइप्स के साथ जो एक्सटेंशंस लगती हैं वो हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? .docx, ठीक है जी, PDF है, RTF है, ठीक है जी, और इसमें TXT है। ये सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सब सारी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें नहीं पता कि UGC पेपर में अभी इस बार क्या आएगा, लेकिन हाँ ये, बट मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर में कोई और फाइल एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। 100% कवर किया है मैंने। कंप्रेस्ड फाइल एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई, कंप्रेस्ड फाइल्स होती है ना,
ठीक है जी। तो उनकी डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस हैं। .7z 7 जिप कंप्रेस्ड फाइल के लिए, .arj कंप्रेस्ड फाइल के लिए, .deb डेबियन सॉफ्टवेयर पैकेज फाइल के लिए, .pkg पैकेज फाइल के लिए, .rar फाइल के लिए, .rpm रेड हैट पैकेज मैनेजर, .tar.gz टाबॉल कंप्रेस्ड फाइल्स के लिए, .zz कंप्रेस्ड फाइल्स के लिए, .zip कंप्रेस्ड फाइल के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? .rar, ठीक है जी, .z, .zip, ठीक है जी, और .rpm। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आप नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो जब मर्जी ये जब भी आपने रिकॉल करना है पेपर के लिए, ठीक है, जब पेपर में थोड़े से दिन रह जाते हैं, लास्ट दिनों में जब रिकॉल करना है, वो हमारे चैनल पे जितना भी हमने करवाया अब तक का सिलेबस सारा आप जब मर्जी जितना मर्जी फेच कर सकते हैं बार बार, बिकॉज परमानेंटली प्लेस हो चुकी हैं हमारी वीडियोस, ठीक है जी। जब भी आपने सुनना है, जब भी रिकॉल करना है, तो आप वीडियो जितनी बार मर्जी सुनिए। सिस्टम रिलेटेड फाइल फॉर्मेट्स एंड फाइल एक्सटेंशंस, जो सिस्टम रिलेटेड फाइल फॉर्मेट्स होते हैं ना, उसकी एक्सटेंशंस में अब आपको बताने जा रही हूँ। .bak बैकअप फाइल के लिए, .cfg कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, .cpl विंडोज़ कंट्रोल पैनल फाइल के लिए, DLL फाइल के लिए, .dmp डंप फाइल के लिए, .drv डिवाइस ड्राइवर फाइल के लिए, .ini इनिशियलाइजेशन फाइल के लिए, .msi विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज के लिए, .sys विंडोज सिस्टम फाइल के लिए, .tmp टेम्प्रेरी फाइल्स के लिए। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? .bak, ठीक है जी, .cfg, .dll, .msi और जो है .tmp, इस पे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट रिलेटेड फाइल एक्सटेंशंस। इंटरनेट जो भी हम इंटरनेट के साथ जो इंटरनेट पे फाइल्स मेंटेन करते हैं, इंटरनेट पे डाउनलोड करते हैं, उस पर फाइल मेंटेन करते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस जो हैं वो स्टोरिंग के लिए यूज़ होती हैं? .asp, .aspx एक्टिव सर्वर पेज फाइल के लिए, .cer इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए, .cgi और .pl पर्ल स्क्रिप्ट फाइल के लिए, .css कास्केडिंग स्टाइल शीट्स फाइल के लिए, .htm और .html फाइल के लिए, .js जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए, .jsp जावा सर्वर पेज फाइल के लिए, पार्शियली डाउनलोडेड फाइल के लिए, .rss फाइल के लिए, .xhtml फाइल के लिए। ये इंटरनेट की तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट की जितनी भी आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं फाइल एक्सटेंशन, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एक दो को छोड़कर, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम आज करेंगे प्रोग्रामिंग फाइल्स एक्सटेंशंस। जो प्रोग्रामिंग की फाइल्स होती हैं उनकी फाइल एक्सटेंशंस क्या होती हैं? .c और C++ सोर्स कोड फाइल के लिए, .class जावा क्लास फाइल के लिए, .cpp C++ सोर्स कोड फाइल के लिए, .cs विजुअल सी सोर्स कोड फाइल के लिए, .hc C++ एंड ऑब्जेक्टिव सी हेडर फाइल के लिए, जावा सोर्स कोड फाइल के लिए, .sh बैश शेल स्क्रिप्ट के लिए, स्विफ्ट सोर्स कोड फाइल के लिए, .vb विजुअल बेसिक फाइल के लिए। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? .c, .cpp, .cs, .java और .vb, ठीक है जी। ये सारी और .swift ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी पेपर्स में आई भी हुई थी। तो इसके साथ ही आज की पार्ट 2 ICT जनरल एब्रिवेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म हो गई। और ICT की ये जो टॉपिक है एब्रिवेशंस और जनरल टर्मिनोलॉजी का, ये आज ख़त्म हुआ, ठीक है जी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। वीडियोस को हमेशा लाइक करें, जब भी आप वीडियोस से ज्ञान लेते हैं, इस वीडियोस से आप इतनी नॉलेज लेते हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक करें। लाइक करे बगैर बिल्कुल मत छोड़ें, बिकॉज इससे मोटिवेशन, अगर आप लाइक करेंगे हम मोटिवेट होएंगे और 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और भी नई नई वीडियोस जो है लेके आएंगे आपके लिए। बिकॉज हमारा मिशन ही यही है कि इंडिया पूरा का पूरे इंडिया में जो हर कोई पढ़े और अपने ड्रीम्स को अचीव करे। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें सिर्फ आपकी लाइकिंग्स चाहिए, आपकी सब्सक्रिप्शंस चाहिए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इस चैनल को, ताकि पूरे हर एक इंडिया के कोने तक ये चैनल पहुँचे, ठीक है जी। सो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड stay tuned for the next video. Till now, God bless you and bye bye for now.